So as this Yes, sir. yeah, as this lecture has been recorded, so I will upload the video lecture soon after the lecture will be completed. So my humble request is to, when the lecture is finished, kindly exit the this meeting, because when all will be exited for this meeting, only then the recording has been saved. So when the lecture is finished, kindly exit the meeting. Okay, so just for the sake of revision, so till now we have studied the modeling of three basic systems. So we are modeling the three basic systems, and we know that is the mass spring system, the pendulum system, and the torsional vibration system. So these are the three basic systems we have solved, and so far we have solved some examples from exercise as well as some example problems. So in today's lecture, we will start doing a modeling, but doing the same thing, modeling of systems by another approach. So in the when we have done previously, we have when we modeled the system previously, we have used Newton's second law of motion. So if you remember, all the modeling has been done, sorry, by just using two equations, which is actually a one equation. So summation f is equals to mx double dot, and summation m is equals to I naught theta double dot. So these are two basically single equation. The second equation is the analogous rotation analogous of the summation f is equals to mx double dot. So this approach is called generally Newton's second law of motion approach, or we generally call it as a force method or force approach. The second thing, the another method which will be generally used to model the systems, vibration systems, is known as energy method, and that is the focus of the today's lecture. Okay, so what is the energy method? Now, as we all know, that the law of conservation of energy, which is a fundamental law of nature, holds everywhere in this universe. Okay, no matter where you go, this law is always this law always holds. That's why it's called generally called as the law of nature. Okay, and it states, let's say if you consider a falling body which is under the influence of gravity, and let's say this is your ground. So in the falling body, at any point in time during its path from moving from any point, let's say the point, call it A, to a point B, which is ground, at any point along this line, its total kinetic energy plus potential energy will remains constant. And you know from your since your school and your college that kinetic energy plus potential energy for any falling body remains constant, and that is the law of conservation of energy. Now, in vibration, we generally represent kinetic energy as T and potential energy as U. Here we represent constant as C. So this is representation in vibration. Generally, mechanical vibration, when we represent kinetic energy, we generally represent in the T rather than K dot E, and U rather than P dot E. In modeling the vibration systems, we generally say that if you take the time derivative of the kinetic energy plus potential energy, it will always equals to 0. And
there are two ways of understanding. First, mathematical. If you take the derivative of this equation, so d by dt with respect to time, so you know that derivative of constant is 0, so you get 0. The second philosophical explanation is, during all this time from this point till this point, there is no net change in energy during that time of motion. I'm again repeating, during the time of motion from point A to point B, there is no net change in the energy. So the total energy will always conserved. Using this equation, which we generally call as the fundamental equation for the driving the laws of, for driving the equation of motion. So we will apply the same equation to our basic system that we have done using force method. So let's say the same mass spring system with a mass as m and k as stiffness, we use this conservation of energy method. So first we have to derive two energies. The one energy is the kinetic energy, second energy is the potential energy. Now, as we all know that the kinetic energy is because of the virtue of the mass. The mass that is present in the vibration system, the kinetic energy of vibration system is due to the virtue of the mass, and that is nothing but half m, which is the mass, the same mass as you can see here, multiplied by the v square, which is the velocity of this mass. Clear? So or in other words, you generally know that we write generally is at x dot and x double dot. So we can write that as half m x dot square. Instead of writing v square, you can write x dot square. Okay. Now what is the potential energy? Potential energy is nothing but half kx square. Again, from your FSC, the k is the stiffness, and you know the potential energy in this case is elastic potential energy, and that is the potential energy stored in the spring. So this potential energy is the virtue of the stiffness element or the spring. Okay, using the above equation, so I said d by dt, putting the value of t and u, half mx dot square plus half kx square equals to 0. So we have got this equation. Okay, d by dt or time derivative of half mx dot square, which is t. So this is t and this is u. So we have put the same values in this equation and just equate equals to 0. Now just take one step forward and just derive it. So if you just derive it, or you take the time derivative of both terms, so the first derivative of first term is 1 by 2 m, and you know from the derivative rule, this becomes x dot square become nothing but 2. सर चीज पूछनी है सर, ये 1/2 kx स्क्वायर कैसे आया? kx स्क्वायर कैसे? किसी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लें तो वो हाफ kx स्क्वायर होती है इलास्टिक पोटेंशियल। हाँ जी, आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपने याद होगा आपने एफएससी में इसको डिराइव किया हुआ है, Yes, आई sir. थिंक सेकंड ईयर। हाफ kx स्क्वायर। हाफ kx स्क्वायर ये स्टैंडर्ड है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx स्क्वायर। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसकी बेसिक डेरिवेशन भी दिखा दूंगा, लेकिन अगर आप कहीं से भी दैट से भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी आपने एफएससी में ये करके आए हुए हैं। किसी भी स्प्रिंग की जो इलास्टिक, मैं दोबारा रिपीट करूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक का मतलब है दैट कैन डिफॉर्म एंड रिस्टोर द एनर्जी, ठीक है, लाइक अ स्प्रिंग, इट्स पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट हाफ kx सर स्क्वायर। इसमें हम ये देख रहे हैं ना कि हमारे पास जो मैस ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव हो रहा है उसमें एनर्जी चेंजेस क्या हो रहा है एज अ होल, मतलब हम लॉ ऑफ पोजीशन एनर्जी को इस पे अप्लाई कर रहे हैं इस मैस सिस्टम के ऊपर। नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है सिंपल। बेसिकली हम मैस स्प्रिंग सिस्टम को सॉल्व यस कर सर, रहे हैं, अप्लाई ठीक इस है। पे कर रहे हैं। हाँ, हम अब अप्लाई जो हमने, आपको याद है सही हमने सर, बाय यही यूजिंग। सिस्टम सॉल्व किया था फोर्स मेथड से, याद है आपको, यस समेशन एफ इक्वल्स टू mx डबल डॉट। यस अब हम वही चीज, यस सेम सर। चीज, सेम सिस्टम हम एनर्जी मेथड से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा हम क्यों ठीक कर है रहे हैं ये। अगर वो भी करेंगे तो उससे भी तो हो ही जाता है, लेकिन इससे क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर में आपको 10-15 मिनट में इसकी इफादियत समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। Okay, thank you. So it become 2x dot
times, and if you take the x derivative of x dot, is become x double dot. Okay, so this is, I'm just write, just highlight, this is nothing but d by this only time nothing but x dot square. So I've taken the time derivative x dot square. So come, आपको याद हो हम एफएससी में तो मैं भी और आप भी रट्टा मारा करते थे दैट किसी का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले पावर में से एक काम और बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। सो पावर पहले 2 आ गई, पावर में से एक काम क्या हो गया, x डॉट 2 माइनस 1 इज 1 x डॉट, और x डॉट का इटसेल्फ डेरिवेटिव क्या होगा, चूंकि ये टाइम डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव है तो जब उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये x डबल डॉट बन जाएगा। ओके, सेकेंड टर्म के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली आप यही करें, हाफ के, और इसके अंदर भी क्या आएगा, 2x x डॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? ओके, अब आप गौर करें अगर इस इक्वेशन को, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन में आप देखेंगे ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास बच जाएगा वो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा becomes mx dot x double dot plus kx x dot equals to 0। मैं दोबारा प्रीवियस पेज पे जा रहा हूं, आप गौर से इसको दोबारा देख लें। So if 2 is cancelled from 2, you get mx dot x double dot and kx x x dot equals to 0। So what we left is this equation। Excuse me, sir. जी जी पूछे सर हमारा नेट स्लो, तो काइंडली ये बता दें ये एम एक्स डॉट फर्स्ट डॉट जिस पे है ये कैसे आया, अगर ये काइंडली बता दें। ये कैसे आया आपके वो पास? मैंने सुना नहीं सर। जी सर, मतलब आपने तो पहले एक्स से पहले डॉट लिखे फिर डेरिवेटिव डबल डॉट ना, ये एम एक्स डॉट ओके एक्स ओके, मैं बता ये कर पाए। मैं बता अगर आप इसको, ये जो जिस हमने ये लॉ यूज किया, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस जो मैं इसकी बात कर रहा था, what we have done is we have write the kinetic energy and potential energy of a spring and a mass spring system. So what we have done is just written the kinetic and potential energy of this mass spring system. Clear? So kinetic energy of the mass is half mx dot square and the potential energy of the spring is half kx square. Clear? So what we have do again is to just put this value of kinetic energy, which is T, and potential energy in this equation. So we have done simply just putting the value of T and U this. The next thing is we have to take the time derivative of both terms, this term and this term. If you take the time derivative of first term, you know only time derivative is this x dot. So 1 by 2 m is taken as the constant and out of the derivative, and the x dot square derivative is, if you just write here, so d by dt of x dot square. Okay, but we have only can take the derivative of x dot square because half m is a constant quantity. So if you take the time derivative, so it's nothing but 2, which is the power on the left side, time x dot 2 minus 1 and d by dt of x dot. So this is nothing but, so at 2 minus 1 is x dot power 1 and time derivative of x dot is x double dot. That's why we write, we have only taken the time derivative, we have done nothing else, only taken the time derivative, and by taking the time derivative the natural thing come out to be 2x dot x double dot. Again, if you just, if you have done confusion in deriving, just go through your FSC or go to internet, just revise your basic derivatives, you can easily understand that. Okay, the one thing that you can see in this equation is the x dot common. So mx double dot plus kx equals to 0. So this is our fundamental equation. Okay? Now there are, in this formulation we have 3 possibilities. I'm just writing these possibilities. So we have 3 possibilities. The first possibility to satisfy equation 1 is that x dot is 0 but mx double dot plus kx is not equal to 0. This is the first possibility. The second possibility
that x dot should not be equal to 0, but mx double dot plus kx is equals to 0. The third possibility, this is a mathematical possibilities, is that x dot is equal to 0 and mx double dot plus kx equal to 0. I think you can understand these three possibilities. To satisfy the equation 1, we can have three possibilities so that right hand terms can be 0. Now let's check the possibility one by one. Okay, first check the third possibility. If we consider first the third possibility, that both are 0, it means there is no vibration. Okay, there is no x dot, there is no mx double dot, kx dot, both 0, there is no vibration. So if you are studying no vibration, then why we are modeling the system? So definitely then you cannot take this possibility. The only two possibilities are left now. Clear? The only two possibilities are left now. The first possibility is that this first possibility, that x dot is 0, but mx double dot plus kx is not equal to 0. Okay, now if x dot is 0, now a trivial solution, and if you know what is a trivial solution, it's a solution in which we call it conventional solution, and an easiest solution is that x dot goes to 0. If x dot goes to 0 and if mx double dot plus x dot is not 0 even, then the whole equation goes to 0. But if x dot goes to 0, it means there is no velocity in the mass. So I'm just write the mass spring system again. So what I'm saying is there is no velocity in the mass. If no velocity in the mass, there cannot be no displacement and no acceleration. So even there is no vibration at all. So we only left with the second possibility, and that is because you cannot take velocity to be 0. So then you have to take this equals to 0. And if you remember from your previous understanding, if you divide m on both sides, you get k over mx equals to 0. And you remember this is nothing but x double dot plus omega n square x equals to 0, where omega n is under root ky. So the conclusion from this modeling by energy method is, if you remember, the final equation is exactly same as we have derived in the force method. The final equation is exactly the same as we have derived in the force method. But see, we have used a different approach. Rather than writing the forces, we have written the energies of the system. Clear? So just to justify you that even you model it with a force method or energy method, the results will be the same. Now the major question arises, then why we are using an energy method? If we can derive the same equation from both methods, and we have first studied the force method, then why we are then doing the energy method? And that is, I will explain in the next slide. Okay, so any question? यस सर इस जो पिछली इक्वेशन में एक सिंगल डॉट था x डॉट, सर वो किधर गया? x डॉट किधर गया? यस सर, जो मल्टीप्लाई हो रहा था जी, मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है. ये देखिए बेसिकली दो टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में. इसको आप a टर्म कह लें, इसको आप b टर्म कह लें. ठीक है, इन दो टर्म्स की जो मल्टीपल है वो 0 है. ठीक है, अब हमने पॉसिबिलिटीज देखी 3. ठीक है, हमने देखा कि तीनों पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, सॉरी, ये वाली पॉलिसी एग्जिस्ट ये करती है, एंड दैट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी. इसके अंदर x डॉट तो नॉन जीरो है,
तो इसको तो हम 0 के बराबर ले, तो हमें फिर ये वाली इक्वेशन एज्यूम की है, ठीक है। इस वजह से हमने जो है वो एक्स डॉट को कंसीडर नहीं किया, तो क्योंकि हम इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, ठीक है। और जब हमने उसको 0 के बराबर, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं, अब ये क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये तो सिस्टम के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा कि ये नॉन जीरो है, दूसरा जीरो है, उसको 0 के बराबर इक्वेट करके हमने इक्वेशन डिराइव कर ली। सो हमने इस पॉसिबिलिटी, यानी कि आप ये कह लें कि हमने मैथमेटिकली इसको इस तरह सॉल्व नहीं किया कि एक्स डॉट को मल्टीप्लाई किया है, हमने कहा अगर एक को हम किसको हम 0 ले सकते हैं, उसको हमने 0 के बराबर पुट किया और फिर इसको सॉल्व किया। सर तो जो एक्स डॉट की जो वैल्यू होगी सर वो हमारे किसी काम की नहीं है? नहीं है बिल्कुल है। ये एक्स डॉट की वैल्यू, मैं यही तो बता रहा हूँ कि 0 हो ही नहीं सकती। मैंने इसको 0 नहीं किया, आप ये देखें, इसको 0 नहीं किया, मैंने इक्वेशन के मॉडल करने के लिए इसको नॉन जीरो कंसीडर किया है। अब क्या ये 0 नहीं, ये असल में एक्स डॉट का ताल्लुक होता है डैम्पिंग के साथ, ठीक है, लेकिन जब वो वहां पे एक्स डॉट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका ताल्लुक, वेलोसिटी का ताल्लुक डैम्पिंग के साथ होता है, इसलिए हम जनरली वहां पे कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है। सो Yes, ऐसा sir. नहीं कि कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उसके साथ, बिल्कुल ताल्लुक है, बड़ा क्लोज ताल्लुक है, लेकिन फिलहाल हम मॉडल करने के लिए एक तरह की इजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, और उससे हमने मॉडल, ये आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन पेपर में नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ जस्टिफाई क्या किया है कि आप एनर्जी मेथड से भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मकसद ये है इस पूरी डेरिवेशन का। Yes, sir. Thank you. ओके, अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और अब आपने इसको जरा गौर से सुनना है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, एंड वी नो एवरी moving body has kinetic energy. I think so all of you agree with this. Every moving body, so we know if a body has a mass and has some velocity, so it has a kinetic energy. That is for sure. Okay. Now, if you look at the mass spring system closely, like we have just drawn on the right hand side. So we have a spring. Now, you know mass is moving. So what is the kinetic energy of the mass? Now, if you just observe a mass spring system closely, a spring also moves. So spring has let's consider this is a spring. The spring has a mass. I think you all agree with this. Plus it's moving. Because if it moves, only then a mass can move. Now, if you consider these both considerations, that a spring, which is a stiffness element, as you can see here, has a mass, and definitely it has, and it is moving, then it means it should have kinetic energy. And that is a very interesting question. I think so you all agree with this argument that a spring has a mass and it is moving. Any body that is a mass and moving has a kinetic energy. So let's say we have a kinetic energy of a spring is nothing but half ms, and s is noted for the mass of spring, times, I'm just write vs square. And what is vs? Vs is the velocity of a spring. So kinetic energy of a spring is nothing but some half times ms, which is the mass of a spring, multiplied by the velocity of the spring. Clear? Now, why we are doing this, and I will explain you why we are doing this later. Okay, if you again observe the this spring very closely, leave the mass. We know mass is a kinetic energy. Leave the mass. So this spring, if you look at this spring, so at this point, its velocity is 0. I think so. At the point where it attached to a fixed ground, the velocity of a spring is 0. And at this point, where it is attached to the mass, it has a velocity equals to the x dot, same velocity as that of the mass. I'm again repeating. If you look at the spring,
The one point is attached to the ground, which is this point, and at this point the velocity is zero because it's attached to a fixed support. The point at which it's attached to the mass, it should have the same velocity as that of the mass. So we can now conclude that spring has a gradient of velocity, which means the velocity increases from 0 to a maximum value of x dot. So it is 0 and a maximum value of x dot throughout the length of the spring. So the velocity of a spring is generally linearized as x dot times y over L. And what is y? Y is this. So we take a small differential element, as you can have done in your ODs. You've taken a small mass element, call it as dy, and the element distance of that element from a fixed point is called as y. So the total the distance from fixed point to that differential element dy is y. So what we know again, this is from the experimental relationship. You don't have to remember this. I'm just giving you a concept. So Vs is x dot y over L. Okay, if you put y is equal to 0, which is at the point at a so y is 0 where? This is here. So if y is equal to 0, Vs is 0. And if you put y is equals to L, which is at this point, so this y is equals to L is at this point, so then Vs equals to x dot. So it is just justified that, but the gradient, the actual relationship of the velocity with the velocity of the mass is this. Now this is, again I explained, this came from the experimental data and you cannot find it theoretically. But again, this is just for the justification. Okay, so just putting the values in this equation. So T is equals to half ms, and what is Vs? Vs is nothing but x dot y over L whole square. Okay. So this is the velocity of the velocity of that small element dy, because located at y from the fixed point. Okay, there's a general tradition in the vibration that when we consider the mass of the stiffness element, we generally take it as a unit length. So if just divide the length on the both sides, you get half ms by L x dot y over L whole square. So y divided by L, this is L, this is L. Why? Because generally we have to consider the mass per unit length. So definitely we have to divide the length on the left hand side. So this is our equation. Now the next thing, yes. सर ये एक दफा वेलोसिटी कंसेप्ट दोबारा बता दें y by L का. ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ. जो ये वेलोसिटी Vs है, ये वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग है. अभी वेलोसिटी ऑफ मास की बात नहीं हो रही, वो हमें पता है वो x डॉट होती है, वो हमें नोन है. ये ऐसा रिलेशनशिप है जो कि लीनियर रिलेशनशिप है. ये आपको ये बता रहा है कि स्प्रिंग की वेलोसिटी फिक्स्ड पॉइंट से, इस पॉइंट से जो कि फिक्स्ड पॉइंट है और इस पॉइंट से जो कि मास के साथ अटैच्ड है, इसका आपस में ग्रेडियंट क्या है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हो रही है. डेफिनेटली अगर एक वैल्यू 0 से 1 किसी लेंथ के ऊपर इंक्रीज हो रही है तो उसका कोई ग्रेडियंट तो बनेगा. इसी तरह हमने कहा कि जो फिक्स पॉइंट से फ्री एंड तक जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है ओवर द लेंथ, और वो किसके बराबर है, x डॉट ओवर L के. अब आप देखना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप ठीक है भी कि नहीं. तो अगर आप y को 0 पुट करें तो किसका मतलब क्या है, आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे. ठीक है, इस वाले पॉइंट पे. ठीक है, आप इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, या यहाँ पे y जो है वो 0 है और इस पॉइंट पे y क्या है, L के बराबर है. आप दोनों वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ पे Vs आपके पास 0 आएगी और यहाँ पे Vs आपके पास x डॉट के बराबर आएगी. सो हमने इस बेसिस पे ये रिलेशनशिप लिया है और इसको कहाँ पुट किया, इसको इस फार्मूला में देखिए यहाँ पुट किया बस, और कुछ भी नहीं किया अभी तक. हमने इस वेलोसिटी के फार्मूला को
जहां वीएस का फॉर्मूला जो कि वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग था वहां पुट कर दिया बस। क्लियर? तो वो मत ओके किया, सर। ठीक है। अब Yes. आप देखें ये जो काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट लेंथ, ये एक एलिमेंट के लिए है। अगर हमने पूरे स्प्रिंग के काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू L डी, और किससे इंटीग्रेट करेंगे? डी वाई। क्यों डी वाई से करेंगे? क्योंकि हम लेंथ से इंटरेस्टेड है, ठीक है। हम होल लेंथ से, और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू L। 0 किधर है? इधर। L0 यहाँ पे है और L इज इक्वल टू L यहाँ पे है, ठीक है। सो हम 0 से L तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। और इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे करेंगे हाफ। से तो काइनेटिक एनर्जी पर लेंथ नहीं हो जाएगी हमारे पास? क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी पर लेंथ होगी ना, ये तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी पर तो नहीं लेंथ होगी। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सर वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। देखिए अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट करें तो इस साइड पे क्या होगा? T एंड दिस इज Y 0 टू L, ठीक है। यही होगा ना? इसकी इंटीग्रेशन y होगी फ्रॉम 0 टू L इज इक्वल्स टू, अगर आप गौर करें इस सारे में तो सिर्फ जो जिसके जो y है वो हमारे पास वेरिएबल है, क्योंकि हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dy करें। तो देखिए मैं सारे कॉमन निकाल लूँ, 1/2 ms/l x डॉट स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L y स्क्वायर dy। ये समझ आया सारों को? हमने हाफ ms ओवर l x डॉट स्क्वायर ओवर l स्क्वायर को एक साइड पे कर लिया, क्योंकि वो इंटीग्रेट तो हो ही नहीं सकता। जो इंटीग्रेट हो सकता है वो सिर्फ y स्क्वायर है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर Yes, सिर्फ sir. कॉन्टिन्यूटी ना टूटे तो मैं इसको इधर ही कर देता हूँ, वरना हो सकता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए कि अगले पेज पे नजर ना आए कि हमने क्या किया था पहले। तो मैं यहीं पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे मैं यही करूँ, इसके स्टेप्स कर रहा हूँ। ओके, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये बनेगा टी एल ओवर एल। देखिए ये y को जब पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो आप पूछ रहे थे कि ये पर यूनिट लेंथ बनेगी, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह राइट हैंड साइड को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा एम एस ओवर एल एक्स डॉट स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और ये बनेगा y क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू L, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 1/2 ms ओवर l x डॉट स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, अगर आप इस पे पुट करें तो बनेगा l क्यूब बाय 3। किसी कंफ्यूजन तो नहीं है इस फॉर्मूला तक? ये समझ आ रही है क्या करूं मैं? Yes, sir. समझ तो आ रही है। यस सर। ओके, सो अगर अब आप देखिए इस फॉर्मूला को तो उसमें ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास बचेगा वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बचेगा, और वो क्या बचेगा? वो बचेगा t इज इक्वल्स टू 1/2 m, और पीछे जाके देखें तो क्या, सॉरी ms, और मैं 3 इसके नीचे लिख रहा हूं, उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूं। ये 3 जो है, ये वाला 3 मैंने इसके नीचे लिख लिया, और बाकी क्या बचा? x डॉट स्क्वायर। अगर आप इसे कंपेयर करें मास की काइनेटिक एनर्जी से, तो अगर इसको आप अगर आप कंफ्यूजन तो इसको ts कह लें, मतलब सिर्फ इसलिए कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है या स्टिफनेस एलिमेंट। ts इक्वल्स टू 1/2 और ms/3, सॉरी, जो मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो तो हाफ mx डॉट स्क्वायर होती है, x mx डॉट स्क्वायर। इसे कंपेयर करें तो आपको पता ही लगेगा कि जो 1/3 मास ऑफ स्प्रिंग है वो एक्चुअल मास के साथ वाइब्रेट करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका कंक्लूजन ये है कि जो आपकी एक्चुअल, जिसको आप इस तरह लिखते हैं k ओवर m, जिसको आप कहते हैं कि अगर आपके पास ये स्टिफनेस एलिमेंट है और ये मास है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी k ओवर m होगी, लेकिन असल में k ओवर m नहीं होती। असल में क्या होती है? k ओवर m इफेक्टिव। और इफेक्टिव मास क्या होता है?
इफेक्टिव मास होता है K ओवर M, जो कि आपके पास मेन मास है ये वाला, प्लस द मास ऑफ स्प्रिंग जो कि ये वाला है आपके पास, ये ठीक है। सो इस जो 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 टोटल मास ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है मास स्प्रिंग सिस्टम में, वो है m, विच इज द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, प्लस 1/3 ऑफ द मास ऑफ द स्प्रिंग। और ये मैंने आपको प्रूव किया है यूजिंग दी लॉ ऑफ, जो हम किनेटिक एनर्जी ड्राइव करते हैं उससे। यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है अब, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूं कि हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसके बाद, इसलिए मैं थोड़ा सा आई एम लिटिल बिट क्विक इन दैट। सर हमने एक काइनेटिक एनर्जी इस पेज पे निकाली है और एक पिछले पेज पे भी इसका रिलेशन है। सर इन दोनों में फर्क क्या है? किसकी बात करें, किस रिलेशन की? सर काइनेटिक एनर्जी। एक ये वाले रिलेशन की बात करें? नो सर ये नीचे है सर। यस सर ये वाला। ये वाला? नो सर ये वाला, इससे ऊपर, इससे ऊपर। ये वाला? सर ये जो हमने लिखा हुआ ना, T इज इक्वल टू हाफ MS इंटू एक्स सिंगल डॉट वाई ओवर एल का होल। यस इसकी सर। बात, हाँ ये किनेटिक एनर्जी है स्प्रिंग की। वो जो किनेटिक एनर्जी मैंने लिखी है ये मास की है, यानी कि कहने का मतलब आपको ये है कि अगर आप दोनों को मूव करें तो मास भी मूव कर रहे हैं और स्प्रिंग भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग का सारा हिस्सा मूव नहीं कर रहा, गौर करें कुछ हिस्सा स्टेशनरी है, कुछ की वेलोसिटी कम है, कुछ की ज्यादा है, कुछ की उससे ज्यादा है। हम ये देखना चाहते हैं कि यार स्प्रिंग का कितना मास असल में मास के साथ मूव कर रहा होता है, ठीक है, और Yes, उसको sir. हमें मास में ऐड करना पड़ता है। और अभी एक न्यूमेरिकल जो हम करेंगे नेक्स्ट, उससे आपको बात थोड़ी वाजे हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हम क्विकली न्यूमेरिकल पे जाते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और सिनेरियो बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि मैं ये क्या बात, अगर आपको ये बात फिलहाल नहीं भी समझ आई फिर भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते, अगर फिर प्रॉब्लम हो मैं वापस स्लाइड पे आ जाऊंगा। सर मेरा असल में क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के दो फार्मूलाज हैं, एक ये वाला है और एक पिछले पेज में, इन दोनों में फर्क क्या है? ये देखिए, इससे ये उसी से डिराइव हुआ है, वो जो हमने वेलोसिटी ली थी ना, असल देखिए फर्क क्या था, फर्क तो इस वेलोसिटी का था ना, ये वेलोसिटी ही हमने ली थी नए सिरे से, ये देखिए ये वाली। यस सर। इसी वजह से तो जो हमें नेट रिजल्ट मिला है वो ये मिला है, ठीक है, समझे। वो कंसीडर करके तो ये हमें पता लगा टोटल मास ऑफ स्प्रिंग कितना होता है जो वाइब्रेट करता है मास के साथ। ठीक है सर। और इसकी वजह मैं आपको अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताता हूँ कि ये करते क्यों है। हमारे पास Excuse me, sir. जी जी पूछे प्लीज। सर अगर आप न्यूमेरिकल फिजिकल क्लास में कराते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था सर? देखिए टाइम चूंकि शॉर्ट है, मैं अगर कहेंगे तो मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको। पहली बात है कि Yes, चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको रिकॉर्डिंग दोबारा मिल जाएगी, तो आप इतने परेशान ना हो कि आपको, अगर आपको फिर भी समझ जाएगी तो नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा करा दूंगा क्लास में। लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, लिमिटेड है, हमने थोड़ा सा मतलब अपनी पेस को भी इतना मेंटेन रखना है, कुछ कंटेंट तो हो ना। अभी तक आपके पास कोई ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं, अभी कोई बहुत मेजर कंटेंट नहीं है जो एग्जाम में आना है। हमने को कंटेंट भी तो क्रिएट करना है ना, जो आप कोई एग्जाम में आपने कोई तैयारी भी करें। अगर आपको नहीं समझ आएगा मैं दोबारा समझा दूंगा क्लास में, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि रिकॉर्डिंग होगी तो आप दोबारा सुन के आपको अच्छे तरीके से, इसलिए मैं प्रेफर करूँ कि ये रिकॉर्डिंग में हो। क्लास में तो हो सकता है एक दफा सुन के फिर दोबारा सुने ही ना, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। ना समझ आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके सर कल सर क्विज तो नहीं होगा सर? जी, क्विज होगा सर, क्विज? क्यों, ये कहां से आपके दिमाग में बात आ गई? ये बात कहां से आ गई आपके दिमाग में क्विज वाली? नो सर, कैरी ऑन सर। चले कल देखेंगे आपकी Yes, क्लास sir. कल, एक ही क्लास कल है ना। चले न्यूमेरिकल देखेंगे। सर आप न्यूमेरिकल कराएं बस। ओके हमारे पास ये क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें एक वाटर टैंक है, ये देखिए ये वाटर टैंक है और इसके नीचे एक कॉलम है। आपने ये वाटर टैंक देखे होंगे, इसके नीचे एक कॉलम होता है बहुत बड़ा और ऊपर एक टैंक होता है। नॉर्मली क्यों इस तरह का बनाते हैं, ताकि वाटर का नेचुरल हेड हो, ठीक है, और वाटर अपने हेड से मूव करे इस हाइट की वजह से। अच्छा नॉर्मली चंद जगहों पे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे काफी बड़े बड़े टावर्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब विंड आती है यहाँ से, ये कॉलम जो है पूरे वाइब्रेट करते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो इसके अंदर जो दो चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक कि इसके अंदर एक मास होता है
और वो मैस कहाँ होता है, वो मैस इसके इस इधर होता है, जो इसका ऊपर वाला टैंक होता है वाटर, ये डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, तो सिंपल एक तस्वीर लिया, स्क्वायर भी हो सकता है, किसी और शेप का भी हो सकता है। ये एम लिया है, और ये जो कॉलम नजर आ रहा है ये आपका स्टिफनेस एलिमेंट है। आप कैंटिलीवर बीम में आपके देखने हो तो कैंटिलीवर बीम की भी फिलॉसफी यही होती है। ये राइट साइड पे उसके सिंप्लीफाइड वर्जन बना हुआ है, ठीक है, कि आपके पास एक ऊपर एम है जो कि टैंक का मैस है जिसके अंदर वाटर है या जो भी है, और जो नीचे है इसके अंदर जो है वो स्टिफनेस एलिमेंट है, यानी कि कॉलम है जिसके ऊपर ये स्टैंड कर रहा होता है। वो जो कॉलम होता है वो एज ए स्टिफनेस एलिमेंट एक्ट करता है। लेकिन हमें ये बात भी पता है कि स्टिफनेस एलिमेंट का अच्छा खासा मैस होता है, ठीक है। अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास एक बड़ा वाटर टैंक है और नीचे पूरा एक कॉलम बना है, तो कॉलम कई बार कंक्रीट का होता है, स्टील का होता है, उसका अच्छा खासा मैस होता है। तो हम इंटरेस्टेड हैं इफेक्टिव मैस फाइंड करने में। क्यों इंटरेस्टेड है? हम ये चाहते हैं, ये तो एम है ही है, प्लस कितना कितना पोर्शन होगा स्टिफनेस एलिमेंट, सॉरी कितना ये हमने एम एस फाइंड करना है, ठीक है। इफेक्टिव मैस टोटल क्या होता है, द एक्चुअल मैस विच इज दिस प्लस द परसेंटेज ऑफ द मैस ऑफ द स्टिफनेस एलिमेंट। जो हमने पहले देखा तो वो कितना था, एम एस बाई 3। अब हम देखते हैं इस कॉलम में क्या उतना ही होगा या मुख्तलिफ होगा, ये हमने देखना है। इसके लिए प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया है, लेकिन इसकी एक डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है। अगर आपके जेहन में मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2 हो, जो कि मैं थोड़ी सी आपको पढ़ाई है, तो आपके जेहन में किसी भी एक बेसिकली कैंटिलीवर बीम है, किसी भी कैंटिलीवर बीम का एज के ऊपर आप आपको याद होगा हमने इलास्टिक कर्व इक्वेशन भी यूज की थी, हमने जो है वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी निकाली थी, स्लोप इक्वेशन भी निकाली थी। ये जो आपको गिवन है ये इस कैंटिलीवर बीम की डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, ठीक है, ये इसकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। और ये उसी तरीके से निकलती है जो हम सिंपल मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के प्रिंसिपल यूज करते हैं, जो आपने 2 में बड़ी डिटेल से स्टडी की है। अब अगर आपके पास कोई रियलिस्टिक प्रॉब्लम आ जाए रियल लाइफ में, तो आप तो पहले ये वाली इक्वेशन को डिराइव करेंगे और फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ पे, और हमने मुझे ये रिज्यूम कर सकता हूँ कि आप ये कर लेंगे, पेपर में भी मैं आपको इक्वेशन दे दूंगा, क्योंकि इक्वेशन ड्राइव करने में यू नो दैट कि आधा पौना घंटे चल आपको लग जाए। एज्यूम मैं ये करूंगा कि जब आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकाल सकेंगे किसी भी बीम के लिए, चूंकि हम वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2 में करके आ चुके हैं। हम अब इंटरेस्टेड हैं इसकी किनेटिक एनर्जी फाइंड करने में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये मैस स्टिफनेस एलिमेंट का मैस चाहिए। अब जरा गौर से देखिए इसको, अगर हम मैस की वेलोसिटी को x, यही अब देखिए ये y है, ठीक है, ये y है, यानी कि जो जो x है, अब x इसका लेंथ पैरामीटर है और y इसका वाइब्रेशन पैरामीटर है, तो इससे किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m y डॉट स्क्वायर। ये कंफ्यूज नहीं करना किसी ने x और y को, इस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल में y इसकी डिफ्लेक्शन का वेरिएबल है, जबकि x है वो उसकी लेंथ का वेरिएबल। अगर ये y उल्टा होता तो फिर हम उल्टा लिखते। हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन गिवन है, अगर आप इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालें जो कि एज के ऊपर है, तो मैं इसको y मैक्स कह देता हूं। y मैक्स क्या होगा, व्हेन x इक्वल्स टू l, तो या पुट करें तो p l स्क्वायर ओवर 6ei, सॉरी 3l माइनस l, ये क्या बचेगा, y मैक्स इक्वल्स टू पी एल क्यूब ओवर 3ei। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये y मैक्सिमम की, ये y मैक्सिमम क्यों निकाल रहे हैं, मैं इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं। इस y मैक्स की इक्वेशन से आप p की वैल्यू निकाल लें, विच इज y मैक्स 3ei ओवर l क्यूब, ठीक है, और इसको यहां पुट कर दे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या बनेगा, जरा गौर से देखें, y ऑफ x इक्वल्स टू p की वैल्यू है y मैक्स 3ei ओवर l क्यूब, p की वैल्यू आ गई, इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6ei 3l माइनस एक्स। सो ये देखें ये क्या बन गया, ये
2, ठीक है, ई आई इससे कैंसिल। तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए किया, अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई न्यूमेरिकल में खास फर्क नहीं पड़ेगा। y ऑफ x इज इक्वल टू y मैक्स इंटू क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर 2l क्यूब 3l माइनस एक्स। ये y मैक्स इन y x इन टर्म्स ऑफ y मैक्सिमम क्या है, डिफ्लेक्शन एट दिस एज, ये y मैक्स, ठीक है। अगर आप इसको वैसे भी अगर आपको इस फॉर्म में भी रहने दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इक्वेशन को थोड़ा स्क्वीज किया है सिर्फ। आप मैं दोबारा रिपीट करूंगा ना, y x को उसी तरह भी रहने देंगे तब भी न्यूमेरिकल में 1% भी गलती नहीं होगी, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखें y ऑफ x के आगे मैं दोबारा लिख रहा हूं, y मैक्सिमम एक्स स्क्वायर ओवर 2l क्यूब 3l माइनस एक्स। अच्छा, अगर मैं इसको ये वेलोसिटी अगर आप गौर करें तो ये वेलोसिटी किस चीज की है, ये वेलोसिटी जो है वो इस पूरे अलोंग ये पैरामीटर x है, तो ये x के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है। अगर मैं इसकी वाइब्रेशन इक्वेशन लिखूं तो आपने सिंपल ज़हन में रखना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ साइन ओमेगा टी, बस जस्ट मल्टीप्लाई। जो भी आपके y एक्स ऑफ इसको y एक्स ऑफ t लिखें, y इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एक्स टी, और आगे साइन ओमेगा टी को यहां मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा सर आगे काइंडली क्या रिपीट कर देना जी, सर, ये पॉइंट रिपीट कर देना, समझ नहीं मैं रिपीट करता हूँ। आपके पास ये इक्वेशन तो वो है जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, आप इसको y मैक्स में कन्वर्ट करना चाहें या ना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है। कि आप उसको p वाली फॉर्म में भी रहने देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से आप यहीं से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट इस स्टेप से, ठीक है। अब हमने क्या किया है, सिंपल y ऑफ x जो कि x का था फंक्शन, अब हमने x और t लिख लिया है। अब इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे आप x और t यानी कि वाइब्रेशन बेसिकली मेजर कर रहे हैं, तो आपने इसको साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देना है, बस साइन ओमेगा टी से। क्यों करना है ये थोड़ी देर बाद आपको शायद हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके समझ आएगी, कि फिलहाल इसको इसी तरह कंसीडर करें कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सर ये वेलोसिटी इसकी आ गई है, ये अभी डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी अभी y एक्स ऑफ t है, अभी हम वेलोसिटी निकालने लगे हैं। जो किनेटिक एनर्जी में हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना, हमें सर x डिफ्लेक्शन वेरिएबल है, x डिफ्लेक्शन है, x इसका लेंथ पैरामीटर है, ये 0 है ना, x 0, और ये x इक्वल्स टू l है, और y इसका डिफ्लेक्शन पैरामीटर है। समझाया? यस y इसका डिफ्लेक्शन, Yes, इसलिए हम y लिख रहे हैं क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन से गर्दन, हमें उसकी लेंथ तो ये x आ रही है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, टाइम डेरिवेटिव, बहुत सादा सा डेरिवेटिव है इसका, एक्स स्क्वायर ओवर 2l क्यूब, ये सारा कांस्टेंट है, और ये बनेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। ये सारों को पता है कि हम कॉस साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लें टाइम तो कॉस ओमेगा टी बनेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने लगा हूं। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, वेयर x इक्वल्स टू l, ठीक है, समझा कि ना। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, जहां बिल्कुल एज है इसका, ये वाला पॉइंट, ये y डॉट मैक्स होगी, और x इक्वल्स टू l पुट करें तो ये क्या बनेगा, ये देखें, इसको l पुट करें, इसको l पुट करें तो ये बनेगा 2l, तो ये देखें l स्क्वायर, ये l स्क्वायर बन जाएगा, और ये रह जाएगा 2l, 2 इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, आपके पास बचेगा y मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा। ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी एट द टिप ऑफ द टैंक, टिप ऑफ द टैंक, ठीक है, वो ये है। ये निकाली क्यों है, ये अभी हम इसको यूटिलाइज करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास y डॉट आ गई, अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर दें, t इज इक्वल्स टू हाफ
एम वाई डॉट स्क्वायर, इसमें पुट कर दो। सो 1/2 एम एंड व्हाट इज वाई डॉट, ये वाली इक्वेशन, ये वाली आगे होगी। हमने सिंपल क्या किया है, हमने, अच्छा यहां पे आप बेशक इसको एम एस लिख लें, एम एस स्टिफनेस एलिमेंट के लिए, या वैसे मैंने न्यूमेरिकल में इसको सी पे कॉलम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप किसी से भी कर लें। ठीक, कॉलम का मैथ, यानी कि ये किनेटिक एनर्जी हम किसकी फाइंड करें, उस स्टिफनेस एलिमेंट की जो कि कॉलम है। ठीक है, अब एग्जैक्टली वही काम करना है, कोई फर्क नहीं, एग्जैक्टली वो काम करना है। आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंथ से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली वही काम। क्यों करेंगे, सॉरी, मैंने को बताया कि हम नॉर्मली मैथ्स को मैथ्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, y max x square over 2l cube 3l minus x ओमेगा cos ओमेगा t। तो हमने लेंथ से डिवाइड, अब उसी तरह आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू ये देखें 0 टू l, ठीक है। सो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू l t ओवर l एंड विद रिस्पेक्ट टू dx। क्यों dx, क्योंकि देखिए अब जो x है वो इसका डायमेंशनल लेंथ पैरामीटर है, ये देखें, उसके जो भी इसका लेंथ पैरामीटर होगा आपने उसकी रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करें, टाइम से इंटीग्रेट ना कर दीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में भी ये गलती करते थे कि वो जो प्रीवियसली कि वो टाइम से इंटीग्रेट नहीं करना, टाइम या हम पूरी लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट करें ताकि हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिले ओवरऑल लेंथ के अंदर। इसी तरीके से 0 टू l 1/2, और मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, फिर वो बहुत टाइम जाया होता है, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली वही है विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको इंटीग्रेट बनेगा t मैक्स, यानी कि ये x बाय l बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर आप गौर करें तो 1/2 आप कॉमन निकाल लें, सिर्फ जो x की टर्म में उनको सेपरेट रहते हैं, बाकी सब कुछ बाहर निकाल लें। mc/l y मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर, इसको आप अलग निकाल लें, और इंटीग्रेशन 0 टू l, सॉरी डिवाइड बाय 2l क्यूब भी, क्योंकि 2l का भी तो कोई इंटीग्रेशन नहीं हो सकती ना, तो x स्क्वायर इंटू 3l माइनस x dx, ठीक है, ये आ गया हमारे। अब जब भी आप सॉल्व करें एग्जाम में भी, तो इसको आप इसको कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लें। सो लेट, मैं इसको p ले रहा हूं, आप जब पेपर करें तो लिखेंगे लेट, तो उससे फायदा क्या होगा, आपकी स्टेप्स थोड़े से टाइम कम कंज्यूम करेंगे, अदरवाइज वो आप बार बार लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो t मैक्स इक्वल्स टू p मैं सारे कांस्टेंट को कह रहा हूं, क्योंकि इसको तो आप हर स्टेप में इसी तरह लिखेंगे, ये तो चेंज नहीं हो सकता। आप इंटीग्रेट करें जरा उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले किया था। तो पहले तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 3l x स्क्वायर माइनस 3l x स्क्वायर, सॉरी ओके, एक गलती हो गई है, एक सेकंड, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। सो ठहरे, अभी हमें इसे पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, अब देखिए x4 इंटू 3l माइनस x होल स्क्वायर dx, ये अब पहले हम स्क्वायर खोलेंगे, ये 3x माइनस l होल स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, t मैक्स इज इक्वल्स टू p 0 टू l, एंड दिस इज, ये क्या आ गया आपके पास, x4 और 3l माइनस x को खोलेंगे तो ये बनेगा 9, दिस बिकम्स 9l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6lx dx।
ये देखिए मैंने सिर्फ L3L माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल लिया बस, ठीक है। और अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें विद इन ब्रैकेट्स, तो ये बनेगा 9L स्क्वायर x4 प्लस x6 माइनस 6L x5 dx। आपको समझ आ रही होगी कि हमने सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट हर टर्म को सेपरेटली करें, 0 to L 9L स्क्वायर x4 dx प्लस 0 to L x6 dx माइनस 0 to L 6L x5 dx। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें और मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर लूँ, मेरे ख्याल आपको समझ आ जाएगी। सो दिस विल बिकम 9L स्क्वायर x5 over 5 from 0 to L plus x7 over 7 0 to L, और ये बनेगा 6L x6 by 6 0 to L। ये हमने इंटीग्रेट कर लिया इसको, ठीक है। और हमारे पास ये आ गया। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो मैं एक स्टेप करूँ, आप मेरे ख्याल सिंप्लीफाई कर लेंगे इजीली, इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। दिस विल बिकम 9L7 over 5 प्लस L7 over 7, सॉरी ये माइनस है, दिस इज माइनस 6 इससे कैंसिल हो गया। दिस विल बिकम L7। क्लियर? सो P9L। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूमेरिकल्स करते हो आपको नजर आएगी, इन तीनों की पावर्स एक जैसी होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो आपका न्यूमेरिकल गलत है। इन तीनों की पावर्स, जो लेंथ की पावर्स है, ये एक जैसी होंगी, चाहे 10 टर्म हो, 50 हो, 100 हो, इनकी टर्म अगर ये पावर सही ना हो, इसका मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। मैं अगर उसको सिंप्लीफाई करूं, जो कि आप सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये बनेगा 0.943L 7, ठीक है। सो अब मैं कर रहा हूं, मैं इसको वापस पुट कर रहा हूं। अगर आप गौर करें तो P क्या था पूरा, सॉरी, मैं इस पूरी इक्वेशन को जो मैंने कंसीडर की थी, इसको मैंने P लिया था मैं यहां पे। सो ये क्या बनेगी, 1/2। तो T max इक्वल्स टू 1/2 MC over L y max omega cos omega t, y max omega cos omega t whole square divided by 2L क्यूब। और आगे ये हमारे पास P था जो हमने कंसीडर किया था, और आगे क्या बचेगा, आगे वो जो हमने निकाल लिया अब, ठीक है। और वो क्या होगा, 0.943L7, ठीक है। ये इंटीग्रेशन से आया। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो गौर से देखिएगा, y max ओके, एक और गलती कर दी है हमने। गलती ये की है कि ये भी स्क्वायर है, ये देखे ना, ये होल स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है, वो हमने लिखा ही नहीं, सॉरी, ये इसका भी स्क्वायर है। तो ये बनेगा 4L6, ठीक है। और अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, क्या होगा, ये देखिए L6 और L ये कट गया इससे, तो L का लेंथ का पैरामीटर गायब हो गया इसमें से, ठीक है। और अगर आप इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, कि आप क्या करें, आप ये करें T max इक्वल्स टू 1/2 MC, और ये जो जितनी वर्ड, इसको मैंने सॉरी, इसको ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं इसलिए कि ये वो इफेक्टिव मास बनेगा, इनटू 0.943 डिवाइडेड बाय 4, इसको अलग कर लें, और y max
ओमेगा कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर, इसको लगा कर लें। तो आपको याद होगा कि जो ये वाली टर्म है, इसको तो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जो भी आएगी, ये वाली जो टर्म है ये क्या है, ये तो वाई मैक्स डॉट डॉट थी, आपको याद है मैक्सिमम। तो आपने यहाँ पे इसको वाई, और ये क्या बनेगा जो ब्रैकेट में बच जाएगा, दिस बिकम्स 0.235 mc टाइम्स y max डॉट एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पता लगा, ये जो मैथ आया है, ये वो मैथ है जो आपने मेन मैथ में ऐड करना है। यानी कि आपको जो इफेक्टिव मैथ होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफेक्टिव मैथ इक्वल्स टू मेन मैथ प्लस ये वाला मैथ 0.235 mc। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व। इन कंक्लूजन हमने क्या करना है कि हमने स्टिफनेस एलिमेंट की का किनेटिक एनर्जी निकालनी है, और जो आपके पास वो ब्रैकेट में जो मास की फ्रैक्शन बच जाएगी, जो कि अब इस केस में 0.235 आ रही है, जो आपके ज़हन में जब हम स्प्रिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो वो क्या थी, ms/3, और इसलिए कहते हैं 0.33 ms है। ठीक है, या mc जो भी आप कह रहे हैं, ये 33% थी। अब क्या हुआ, कॉलम में थोड़ी सी कम होती है, ये 0.235, ठीक है, ये 23.5%। जो मैथ है वो आपको ऐड करना पड़ता है मेन मैथ में, जिसको इफेक्टिव मैथ कहते हैं। इसका मतलब सादा ये है कि 23.5% ऑफ द मैथ ऑफ कॉलम वो असल में आपको ऐड करना पड़ता है मेन मैथ के अंदर। ठीक है, टू गेट द टोटल इफेक्टिव मैथ ऑफ द सिस्टम। इफेक्टिव मैथ क्या है, द टोटल मैथ विच एक्चुअली वाइब्रेट्स इन अ वाइब्रेशन सिस्टम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफेक्टिव मैथ इज द टोटल मैथ that vibrates in a vibration system, which is the actual mass attached, a dedicated mass attached in a vibration system, plus a fraction of the mass of a stiffness element that is included, and that must be find out using this kinetic energy method. Any question up till now? नो सर काइंडली अटेंडेंस अभी अपलोड, अटेंडेंस शीट अपलोड कर दें आप। जी मैं कर देता हूँ। अच्छा, सारों को समझ आ गई ये? Yes, sir. ओके, इसी तरह के 2-3 न्यूमेरिकल और भी हैं। कल में हम क्लास में, जिसकी भी क्लास इस वीक में होगी, एक न्यूमेरिकल हम क्लास में और सॉल्व करेंगे, और 1-2 न्यूमेरिकल आपको खुद सॉल्व करने होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि जब क्लास में कोर्स सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिकली क्रैक समझ आ जाएगा कि ये बात, ये दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना कैसे होता है। इसमें सिर्फ किनेटिक एनर्जी इवैल्यूएट करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर सिस्टम के लिए इफेक्टिव मैथ डिफरेंट होता है। जैसे आपने देखा कि जब स्प्रिंग था तो 0.33% था, 0.33 था, और जब कॉलम आया तो 0.235 हो गया। इसी तरीके से कोई डिफरेंट सिस्टम होगा तो उसका इफेक्टिव मैथ भी अपना ही होगा। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होगा, 50% से कम ही होता है, या 0.5 से कम ही रहता है हमेशा। ठीक है, लेकिन वो 0.2, 0.1, 0.5, 0, तो ये आपको वैल्यूएट करना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। और ये थोड़ा मुश्किल, एक कह लें कि हम एक मुश्किल स्टेप में गए थे, और होपफुली आप सारों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह हम क्लास में इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके स्टडी कर लेंगे। मैं अटेंडेंस भी अभी अपलोड कर दूंगा, और इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगेन माय लास्ट रिक्वेस्ट के अभी काइंडली फॉरन जो है वो ये जो मीटिंग है ये लीव कर दें, ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो सके और मैं अपलोड